Hello students. In the last video, in the first part of the unit 4, I have done it. Name of the unit 4 is I have done it. In that, section 1 is the Missile Man and an interview with Dr. APJ Abdul Kalam. We have seen the first question and its answer. Today we are going to see the next question. Some questions have been asked to Dr. APJ Abdul Kalam, the Missile Man of our India. So second question I'll tell you 1 minute. Okay. Second question is, we all regard you as the undisputed father of the Indian missile program. Please enlighten us on the integrated guided missile development program, that is IGMDP, and 5 of its major projects. Now the interviewer, who is taking interview, who asked the second question, is that we all know that we know you as disputed, यानी कि no question, there is no question that you are us. For us you are the missile man of our India. So can you tell us, please enlighten, means please tell more about your project, that is IGMDP, यानी कि integrated guided missile development program and its 5 major projects. क्या आप हमको इस बारे में बता सकते हो? So he is answering, in 1983 IGMDP, the short form, the long form of IGMDP is integrated guided missile development program. So envisaged development of 5 missile system, envisaged यानी कि जो future desirable future events of missile system, तो उनमें 5 नाम दिए गए हैं. So first one is पृथ्वी surface to surface missile with 150 km range. Second one is आकाश medium range surface to air missile 24 km range. Third one is Trishul short range quick reaction surface to air missile 8 to 10 km range. And Nag fire and forget anti-tank missile 4 km range. Here Agni technology demonstrator of a long range strategic missile system. During the last 25 years, 2 strategic missile systems have been fully developed and they have been produced in quantity and deployed. तो क्या बता रहे हैं, लास्ट 25 ईयर्स में हमने 2 पूरे तरह से बनाए हुए 2 मिसाइल है, स्ट्रैटेजिक मिसाइल बनाए हैं. दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड विद क्वांटिटी एंड डिप्लॉयड. आकाश हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय एयर फोर्स. जो आकाश जो है हमारा मिसाइल, वो किसने ऑर्डर किया है? एयरफोर्स ने. अ नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑफ पृथ्वी एंड अग्नि हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड. और जो वेरिएंट्स है पृथ्वी और अग्नि के, जो कई पार्ट हमने बनाए गए, हमने बना चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3, we are often troubled by the inequality of access to education. How can this be resolved? How can the students help in solving this problem? Now, a third question the interviewer is asking Mr. Abdul Kalam is, क्या हमारे देश में जो अनइक्वालिटी है, जो मतभेद है या अनइक्वालिटी यानी कि दोनों में सामने नहीं है, वो एजुकेशन, सभी बच्चे सेम एजुकेशन नहीं ले पाते, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप क्या दोगे? हम किस तरह से स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? सो आंसर इज गिवन टू हिम इज, दिस कैन बी रिजॉल्व ओनली बाय एनहांसिंग द नंबर ऑफ सीट्स इन प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक मेडिकल, फार्मा and management, as has been done in the case of engineering. Today a number of engineering seats are vacant. Now what the answer is given here is, वो बोल रहे कि ये प्रॉब्लम सिर्फ तभी सॉल्व हो सकता है जब जैसे कि मेडिकल, फार्मा, मैनेजमेंट, इस सारी प्रोफेशनल्स में बहुत सारे सीट्स उपलब्ध किए जाए. अगर बच्चों को बहुत सारे जगह उपलब्ध किए जाए उनके लिए, तो वो सीख सकते हैं और वो सीखने से
दूर नहीं रहेंगे। टुडे अ नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स आर वैकेंट। तो वो बोल रहे हैं कि आज अगर हम देखा जाए तो इंजीनियरिंग के बहुत सारे सीट्स वैकेंट यानी कि एम्प्टी हैं। स्टूडेंट्स हैव अ चॉइस टू फॉर गेटिंग द बेस्ट एजुकेशन। और स्टूडेंट्स के पास अच्छा एजुकेशन लेने के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है। स्टूडेंट कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम बाय गोइंग फॉर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स विच विल रिड्यूस द लोड ऑन क्लासरूम एजुकेशन। वो बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि जिनके लिए नहीं पॉसिबल है क्लासरूम में जाना, वो बाहर से एजुकेशन कर सकते हैं ना, क्लासरूम में नहीं जाके। और इस चीज़ में इंस्टीट्यूशन का जो ये है हिस्सा है, उन्हें क्या करना चाहिए? इंस्टीट्यूशंस हैव टू इंश्योर दैट इन डिस्टेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स sorry the content quality is high and appropriately supplemented विथ कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स। तो इस सब में अगर कुछ बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते या कॉलेज में नहीं आ सकते, अगर वो बाहर से करना चाहे तो उनको करने देना चाहिए और उनको अच्छी शिक्षा पहुंचाने का, उनको अच्छी शिक्षा देने का काम इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए और जो भी उनको चाहिए वो प्रोवाइड करने का काम इंस्टीट्यूशन ने करना चाहिए ना। फोर्थ वन इज़ atom is usually associated with an atom bomb, that is destruction. Please enlighten us on the brighter side of the nuclear energy, how it is used for creation and development. अभी now fourth question is asking is कि एटम, अगर हम बात सुनते हैं एटम नाम भी लेते हैं तो हमारे सामने जो आता है पहली चीज़ हमें स्ट्राइक होता है इस एटम बॉम्ब, यानी कि सब डिस्ट्रॉय या सब डिस्ट्रॉय होने वाली चीज़ हमारे सामने आती है। उसकी जो अच्छी साइड है वो आप हमें बताएं, इसके अच्छे जो परिणाम हैं, एडवांटेजेस है, वो भी हमें बताएं। सो आंसर इज गिवन हियर इज न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सिर्फ हम जब सोचते हैं तब सिर्फ यही सोचते हैं कि एटम यानी कि जब वो गिरेगा तो सबका नाश हो जाएगा, सब विनाश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके कुछ गुड एडवांटेजेस भी है कि हम उसे पावर जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, इरिडिएशन यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ फूड्स, यानी कि जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं सीड्स के लिए, ये भी उसके कुछ अच्छे यूज़ है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू सी इंडिया बाय 2020। तो जो इंटरव्यूअर है वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है 2020 में हमारा इंडिया कैसा होगा, आपको क्या लगता है? फर्स्ट थिंग what he said is, I visualize the following distinctive profile of India by 2020. What अब्दुल कलाम said कि मुझे ऐसा साफ साफ दिखाई देता है कुछ चीज़ें इंडिया के बारे में जो 2020 में होंगी। So which are they? We'll see. Now first one is a nation where a rural and urban divide has reduced to a thin line. जो रूरल यानी कि जो विलेज है विलेज एरिया और जो अर्बन एरिया है उनमें जो बहुत ज़्यादा फ़र्क है वो नहीं रहेगा, वो बहुत ही कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अ नेशन वेयर देयर इज़ एन इक्विटेबल distribution and adequate access to energy and quality for the जो मुझे लगता है कि 2020 में ऐसा होगा कि जो सबके लिए समान जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो एक्सेस का, जो एनर्जी का, जो अच्छी क्वालिटी का वाटर का, ये सबको एक जैसा ही मिलेगा, ऐसा मुझे 2020 में लगता है। थर्ड नंबर, अ नेशन वेयर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड द सर्विस सेक्टर वर्क्स टुगेदर इन सिम्फनी यानी कि हार्मनी इन और इन पीस। मुझे लगता है कि जो 2020 में हमारा जो नेशन है इंडिया, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत ही आगे जाएगा और सब साथ में होकर बहुत पीसफुली इस पे काम करेंगे। नंबर डी, अ नेशन वेयर एजुकेशन विथ वैल्यू सिस्टम इज़ नॉट डिनाइड एंड टू एनी मेरिटोरियस कैंडिडेट बिकॉज ऑफ सोसाइटल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे क्या लगता है
मेरिटोरियस यानी कि इंटेलिजेंट। अगर कोई भी ऐसा है जिसके पास इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंट है, जो शिक्षा ले सकता है, वो कोई भी उससे वंचित नहीं रहेगा और उसे ना नहीं कहेगा और वो बहुत ही अच्छा शिक्षा लेगा। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि वो एजुकेशन अच्छी तरह से ले सकता है। नंबर ई, a nation which is the best destination for the most talented scholars, scientists and investors। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि 2020 में हमारा जो इंडिया है वो ऐसा नेशन बनेगा जो बहुत ही अच्छी प्लेस होगा टैलेंटेड लोगों के लिए, जो स्कॉलर्स है, जो साइंटिस्ट है और जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए। अ नेशन वेयर द बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर इज़ अवेलेबल टू ऑल। और हमारा जो नेशन है 2020 में ऐसा बनेगा जो बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर और सबके लिए समान और सबके लिए अच्छी हेल्थ के लिए केयर करने वाला ऐसा नेशन बनेगा। सॉरी। नंबर जी, अ नेशन where the government is रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन फ्री। ऐसा नेशन बनेगा जो रिस्पॉन्सिव यानी कि जो क्विक रिस्पॉन्ड करे, ऐसा गवर्नमेंट या कुछ भी चीज़ हो तो उस पर जल्द ही गवर्नमेंट उनकी तरफ से कुछ आए, कुछ रिस्पॉन्स अच्छा आए, या ऐसा गवर्नमेंट बनेगा। ट्रांसपेरेंट यानी कि कोई भी कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा लोगों से, और करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। A nation where poverty has been totally eradicated, illiteracy removed, and crimes against women and children are absent, and no one in the society feels alienated. Now, वो क्या कह रहे हैं, मुझे क्या लगता है कि 2020 में हमारा जो नेशन है वो कैसा बनेगा, वो इरेडिकेटेड यानी कि टोटली जो अच्छी चीज़ों से भरा हुआ, इलिटरेसी यानी कि जो अशिक्षित लोग हैं वो शिक्षित हो जाएंगे, लोग शिक्षा के ओर बढ़ेंगे, और जो हमारे क्राइम्स, हमारे देश में अभी भी जो क्राइम्स है यानी कि जो बच्चों को लेके, वुमेन्स को लेके, वो सब ख़त्म हो जाएंगे और कोई भी इस हमारे देश में अलग ऐसा फील नहीं करेगा, सब एक जैसे रहेंगे। अ नेशन दैट इज़ prosperous, healthy, secure, devoid of terrorism, peaceful and happy, and continuous with a sustainable growth path। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे क्या लगता है 2020 में हमारा जो इंडिया है वो ऐसा हो जाएगा, कैसा, प्रॉस्परस यानी कि हमारा जो नेशन है बहुत, कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सबके पास पैसा होगा, या सबके पास खाने के लिए खाना होगा, अच्छी हेल्थ वाला, सिक्योर यानी कि बिना कुछ यानी कि सेफ होगा, डिवॉइड ऑफ टेररिज्म यानी कि पूरा लैक ऑफ टेररिज्म पूरी तरह से निकल जाएगा, पीसफुल या शांति से हमारा नेशन रहेगा, और हैप्पी ऐसा रहेगा, और सस्टेनेबल टू ग्रोथ पाथ यानी कि वो बहुत ही जो ग्रोथ यानी कि जो अपना खुद क्या करेंगे, नेक पाथ बनाएंगे, जो ग्रोथ यानी कि बहुत ही ऊंचाई तक जाए, या खुद का क्या कर सके, खुद में बढ़े, या हमारे नेशन को प्राउड फील करवाए। अ नेशन दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू लिव इन एंड इज़ प्राउड ऑफ इट्स लीडरशिप। और तब ये हमारा देश ऐसा नेशन बनेगा जो अच्छी प्लेस भी बनेगा, और हमारी लीडरशिप भी, हमारे जो लीडरशिप के लिए नाम लिया जाएगा, ऐसा हमारा नेशन होगा। नाउ क्वेश्चन 6 इज आस्क्ड हियर इज, वी नो दैट यू आर अ connoisseurs of classical Carnatic music. How and when did you develop this interest? connoisseur यानी कि एक्सपर्ट। आप, हमें पता है, जो इंटरव्यूअर है वो पूछ रहे हैं कि हमें पता है कि आप जो क्लासिकल कर्नाटिक म्यूज़िक है उसमें बहुत एक्सपर्ट है, आपने ये स्किल कैसे डेवलप किया और कैसे इंटरेस्ट आपको इसमें आया? सो ही इज़ टेलिंग द आंसर, दिस आई हैड डेवलप्ड व्हेन आई वाज इन सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिकी। जब मैं ट्रिकी में था, सेंट जोसेफ कॉलेज में, तब ये हुआ है। पर्टिकुलरली आई एंजॉयड इमेजिनेटिव alapanas of music exponents like Miss Subbulakshmi and Seman Gudi
श्रीनिवासा अय्यर। तो इन दोनों के नाम लिया है उन्होंने कि मैं उनकी वजह से क्या सीखा हूँ, म्यूज़िक सीखा हूँ। तो कौन है वो? मिस सुब्बुलक्ष्मी एंड सिमानगुडी श्रीनिवासा अय्यर। माय फ्रेंड संथा नाम, उनके फ्रेंड का नाम है संथा नाम, एंड माई सेल्फ वेर रेगुलर लिसनर्स ऑफ थिरुवैयार थायगरजा फेस्टिवल। तो वो ये दो फेस्टिवल के नाम है थिरुवैयार थायगरजा फेस्टिवल। ये फेस्टिवल के दौरान हम क्या करते थे जी, ये म्यूज़िक सुनते थे। वाइल वी वे स्टडिंग इन सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिकी वी यूज टू डिस्कस द रागास ऑफ द वीक्स इन द हॉस्टल। हम जब इस कॉलेज में थे तब हम इसके बारे में बात करते थे। आफ्टर लिसनिंग टू म्यूज़िक इन थायागरजा फेस्टिवल, और इस थायागरजा फेस्टिवल में जब हम सुनते थे ये म्यूज़िक तो हम उसकी प्रैक्टिस क्या करते थे या उसके बारे में बात करते थे। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ एनी मैसेज फॉर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। क्या आप हमारे फ्यूचर सिटीजन्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, यानी कि हम लोगों को जो आज पढ़ रहे हैं ये लेसन उनके लिए, वो तो हमारे बीच अभी नहीं है लेकिन उन्होंने कुछ बातें बहुत ही अच्छी कही है जो हमको आज सुननी चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए और वैसे बर्ताव करने का हमने कोशिश तो करनी ही चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू असर्ट यानी कि स्टेट क्लियरली फॉर द फ्यूचर सिटीजन्स। वो बोल रहे हैं कि मैं एक बात क्लियर कर दूं जो हमारे फ्यूचर सिटीजन्स के लिए, जो इंडिया के फ्यूचर सिटीजन्स हैं उनके लिए, नो यूथ टुडे नीड्स टू फेयर अबाउट देयर फ्यूचर। अभी भी कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिनको डरना नहीं चाहिए, किसी को भी ये उनको डर ही नहीं लगना चाहिए उनके फ्यूचर लिए। क्यों? How if you have an aim in life, realize that spent time cannot be recovered. The precious time has to be used for achieving the goals. Have the confidence to win, to defeat problems and succeed. Have a righteous heart, you will definitely succeed in all your missions. ना वो बहुत ही अच्छी सीख दे रहे हैं हमें, हमको क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए है हमें। हमेशा ऐसा, हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें कभी भी नहीं जीत सकता या हमारे फ्यूचर में क्या होगा, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे सोचना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके लाइफ में आपका एम, कुछ तो एक एम रखा है आपने कि मुझे ये करना है, आप हमेशा क्या, जो टाइम गया है वो तो फिर से नहीं आएगा, बट जो प्रीसियस आज हमारे पास जो टाइम है वो हमें अच्छी तरह से हमें यूज़ करना सीखना चाहिए। और वो हमारा जो गोल, यानी कि हमें जो करना है हमारे ज़िंदगी में उस तरफ बढ़ना, हर एक चीज़ में हमें बढ़ना चाहिए। हैव अ कॉन्फिडेंस टू विन, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए कि हम जीतेंगे, जीतेंगे ऐसे ही सोच के हमें हर चीज़ करनी चाहिए। तो हमारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसा देखना चाहिए। एंड हैव अ राइटियस हार्ट, हमारा अच्छा दिल रखो हर चीज़ के बारे में, और तुम हमेशा हर चीज़ में सक्सेसफुल ही होगे। हर चीज़ में, तुम्हारे हर प्लान्स में, हर मिशन में आप सक्सेसफुल होंगे, ये गारंटी के साथ हमें कौन कह रहा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हम क्या उनको मिसाइल मैन क्यों कहते हैं? ये इस सीख से, छोटी सी सीख से हमें समझ में आता है, क्योंकि उनके विचार बहुत बड़े हैं और बहुत ही अच्छे। अगर आपको कभी उनकी ऑटोबायोग्राफी या उनके बारे में उनकी कोई भी किताब आपको पढ़ने मिले तो प्लीज़ पढ़ना, क्योंकि उनमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को उससे मिलेंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन स्टूडेंट्स। आपको ये अच्छी तरह से पढ़ना है और समझ के लेना है। टिल देन, बाय बाय।